after knowing the criteria and after doing some questions based on similarity of triangles. Now we are continuing with the same, and exercise 6.3 we are taking question number 12. See this question, आपको क्या क्या गिवन है, you just see once that AB, BC, this is BC, median AD, this is AD of a triangle ABC are respectively proportionate to sides PQ, QR and PM of the triangle PQR, एंड आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल PQR हैं दोनों सिमिलर हैं. सो फर्स्ट आवर अप्रोच विल बी टू राइट विल राइट फर्स्ट गिवन and then we'll write to show and we'll write the solution. But how will we do the solution? You now see that AB and PQ, AB upon PQ equal to BC upon QR and AD upon PM. They all three sides are given in the proportionate. So we start from there only. So सबसे पहले हम लिखते हैं given. Given is AB upon PQ is equal to BC upon QR and equal to AD upon PM. This is given to us. To show, we have to show that triangle ABC, similar triangle PQR. Now the solution will be, see this AD is given us to median, and we can write one more information that AD and PM are medians, because this is going to play a very important role. Now if we start from here, that AB upon PQ is equal to BC upon QR. Now you see if we have two ratios in this form, then we can get the ratio this way also, that if I divide this by 2 and also divide by this 2, then ratio will not change. So, and this is AD upon PM, we will continue like this, but here we are dividing this BC by 2 and this is QR by 2. So if I do like this, the ratio will not change. Now after this I can write this AB upon PQ, half of BC you can write this as BD, half of QR you can write that as QM, and this is AD upon PM. Why I am saying this is half? Because it is given that BD equal to DC and QM equal to MR. These informations are given because it was written that AD and PM are medians. So we can use this result to bring this. Now we take triangle ABC and triangle, we'll take this AB, we take this triangle ABD. So ABD and triangle PQM. So you can write now that AB upon PQ equal to BD upon QM equal to AD upon PM. So these triangles ABD and triangle this PQM, they will be similar by triple S, and now you may write that angle B is equal to angle C by CPST. Now we are going to prove the final one, that triangle ABC and triangle PQ are similar. So we take triangle ABC and triangle PQR. So we have this, that AB upon PQ equal to BC upon QR. This is given, and angle B equal to angle Q. This is above, you can write from above, this is given to you above. So you can write this triangle ABC is similar triangle PQR by SAS. Now question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC. Show that CA square equal to CB into CD. So first we'll
draw a triangle. This triangle is say this is ABC, this is C, and D is a point on the side BC. So D, let's say this is the point. Now according to this ADC, means I have to join this ADC, this angle is equal to given BAC. BAC is this angle, and I have to prove that CA square equal to CB into CD. So we'll write first given is this angle will take ADC equal to BAC, and we write to show, we have to show, you can simplify this CA, you can write this CA, and here you can write CA, because CA into CA, if you do the cross multiplication, it will be CA square, and you write here CB and you write here CD. So same thing that you want to bring, you can write that also in this form, or you may write in the brackets CA square equal to CB into CD. But if you write this way, you will get the idea what you have to do actually. So we write the solution. Now जस्ट सोचो, आप दो ट्राइंगल्स के बारे में ऐसे सोचो जिसमें ये साइड्स आपकी आ रही हो. जैसे अगर मैं ट्राइंगल, यही ट्राइंगल ले लूँ ADC, दिस ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं हम ADC, और एक ट्राइंगल वही हम ले लेते हैं जो BAC आपको गिवन है, दिस इज़ ट्राइंगल BAC. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि ADC वो जो इस ट्राइंगल का है और जो एंगल इस ट्राइंगल का है BAC, दे बोथ आर इक्वल, दिस इज़ given, and you can see this angle C is common in both triangles. So this is, you can write here common. So triangle ADC और ट्राइंगल जो आपका BAC है वो सिमिलर हो जाएगा, and you know the rule, which rule, this is AA or you can say AAA. So now after showing that they are similar, आप रेशो का प्रॉपर्टी यूज़ करिए. Like AC, if I am taking this AC, then I have to take down that is this is BAC. Okay, I am taking this AC, so AC of this triangle, then I'll be taking now AC of this, then BC of this. I am doing the corresponding parts, and of this triangle you take DC, देन इस ट्राइंगल का आपको लेना होगा AC. सो इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा दिस इज़ AC इंटू AC स्क्वायर, और दिस इज़ योर BC एंड दिस इज़ योर DC. सो यू हैव प्रूव्ड योर रिजल्ट, एंड दिस इज़ फ्रॉम CPST. नाउ वी डू question number 14. Question number 14 is very important because this question requires the construction, and without construction this question cannot be done. You see what is the question, that AB AC, this is AB, this is AC, and this is AD, this is the median, AD is given median, and PQ, PR and PM is also the median. So you can write this BD equal to DC, or this PM equal to this QM equal to MR. So this is given to you, and you have to show that both triangles ABC and triangle PQR are similar. तो देखते हैं पहले कैसे करना है इसको. पहली इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले आपको करना है, हमेशा सबसे पहले आप गिवन लिखिए. गिवन में आप लिखोगे कि AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR, और ये भी गिवन है आपको कि AD और PM ये तीनों आपको इक्वल गिवन है, और गिवन ये भी है कि AD एंड PM आर मीडियंस. सो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लीजिए. उसके बाद देखिए क्या लिखना है हमको, टू शो भी लिखते हैं. टू शो में आप क्या करेंगे कि हम लिखते हैं टू शो में कि हमें ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है ट्राइंगल PQR के. सो ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया. अब इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी. हमें एक ट्राइंगल ये दोबारा से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए हमें नीचे की साइड इसको ड्रॉ करना पड़ेगा. सो वी डू दिस.
ओके, द कंस्ट्रक्शन इज हमने ए डी को एक्सटेंड किया एक्स तक और पी एम को एक्सटेंड किया वाई तक, इस तरह से एक्सटेंड किया कि ए डी इक्वल टू डी एक्स आ जाए और पी एम इक्वल टू आपका एम वाई आ जाए। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट एक ट्राइंगल हम इसको ले लेते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम इस ट्राइंगल को सिमिलर शो कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करेंगे वो मैं बता देता हूँ कि जैसे देखिए बी डी और ये आपको, ये तो ऑलरेडी आपको इक्वल आपको गिवन ही है, बी डी इक्वल टू डी सी, बिकॉज ए डी आपको मीडियन बोला था। और ये साइड ए डी इक्वल टू डी एक्स बाई कंस्ट्रक्शन आपकी आ गई। और इस एंगल को अगर आप 1 मार्क कर दे और इस एंगल को 2 मार्क कर दे तो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि ए बी और सी एक्स आपके इक्वल आ जाएंगे। सो ए बी और सी एक्स इक्वल आने के बाद हम जो हमें ये गिवन है, गिवन वाला कॉन्सेप्ट, इससे फिर हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह से इसमें भी हम यूज़ करेंगे कि हम पी क्यू को आर वाई के इक्वल शो करेंगे। तो जहाँ जहाँ आप देखोगे कि ए बी लिखा हुआ है उसकी जगह हम सी एक्स लिख देंगे, और जहाँ आपके पास ये पी आर लिखा हुआ है, दिस पी क्यू लिखा हुआ है, उसकी जगह आप वाई आर कर दोगे। एंड इसके बाद हम इन ट्राइंगल्स पे आएंगे, विल कम टू ट्राइंगल ए सी एक्स और ट्राइंगल पी आर वाई पे। और इसके बाद हम शो करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब वो कैसे सिमिलर होगा, क्योंकि आपको ये तो है ही कि ए बी की जगह आपने सी एक्स डाला तो सी एक्स अपॉन आर वाई और ए सी अपॉन पी आर, ये आपके रेशो इक्वल हो गए। और इसके बाद आपको जो थर्ड चीज़ चाहिए होगी वो ये है कि ए डी आपको गिवन था ए डी अपॉन पी एम, तो ए डी का हम डबल कर देंगे। ए डी का डबल आपका हो जाएगा ए एक्स और पी एम का डबल हो जाएगा आपका पी वाई। सो ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल प्रोपोर्शनेट में आ जाएंगी। और उसके बाद ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। सिमिलर करके आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आप इक्वल बोल दोगे। एंड सिमिलरली आफ्टर दिस विल राइट सिमिलरली कि हम कंस्ट्रक्शन में अगर इस साइड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सिमिलरली वी कैन शो कि दिस एंगल और दिस एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, दिस सेकंड हाफ यू कैन सी। सो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा एंगल पी। तो ऑलरेडी आपके पास ए बी अपॉन ए सी है ही। आप ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर तो आपके पास ऑलरेडी है। आपने एंगल ए और एंगल पी को भी अगर आपने इक्वल शो कर दिया तो इसका मतलब आपका ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस, हाउ वी राइट दिस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी टेक ट्राइंगल, दिस इज द सॉल्यूशन वी आर राइटिंग, सॉल्यूशन in triangle. We take triangle ADB, this is triangle ADB, and we take this triangle CDX. सो नाउ हम इसको शो करेंगे कि ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको पहले बताया था कैसे शो करेंगे। सो वी राइट कि बी डी इक्वल टू डी सी है, बिकॉज ए डी इज़ अ मीडियन, ये आपको पहले से गिवन है। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू डी एक्स एंड रीज़न होगा बाय कंस्ट्रक्शन। सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो, थोड़ा डिफरेंट लगे आपका, सी डी एक्स। और ये जो है वो ट्राइंगल हम ले लेते हैं, दिस इज ए डी बी। सो दीज आर द ट्राइंगल्स बाय construction, and this we mark this as angle 1, this as angle 2. So angle 1 equal to angle 2, this is vertically opposite angle. So ये जो दोनों ट्राइंगल आपने लिए ए डी बी और ये जो ट्राइंगल आपने लिया ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी एक्स, एंड इसका क्राइटेरिया हुआ SAS। सो इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ये मिलेगी कि ए बी आप उसको लिख सकते हो इक्वल टू सी एक्स। सो दिस ए बी इज़ इक्वल टू सी एक्स ले लेते हैं हम। एंड इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन ऑल्सो शो कि पी क्यू इज़ इक्वल टू आर वाई। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। जो आपको पहले गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू
ए सी अपॉन पी आर, और आपको एक और चीज़ गिवन थी कि ए डी अपॉन पी एम, दिस वॉज गिवन। तो अब इसी में हम रिप्लेसमेंट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी एक्स से, अबव हमने प्रूव किया हुआ है, और पी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं आर वाई से, और ए सी को हम ए सी ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल, और पी आर को पी आर ही ले लेते हैं, एंड इसका ट्वाइस कर देते हैं। इसका ट्वाइस हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंटू ट्वाइस, क्योंकि रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करने से रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ए डी का डबल आप देखिए फिगर के हिसाब से, ए डी का जो डबल होगा वो ए एक्स हो जाएगा, सो दिस इज़ ए एक्स, और इसका डबल होगा वो पी वाई हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली इन ट्राइंगल, आपको जो नज़र आ रहा है दिस इज़ इन ट्राइंगल ए सी एक्स है, इन ट्राइंगल ए सी एक्स, एंड ट्राइंगल जो आ रहा है आपका पी आर वाई है, पी आर वाई, उसके अंदर आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब आप ये अब लिख सकते हो कि ए सी एक्स जो ट्राइंगल हुआ और ये जो ट्राइंगल हुआ पी आर वाई, ये आपके सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल एस। सो सिमिलर से आप एक चीज़ निकाल सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 4, कि एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, यू कैन राइट दिस सी पी एस टी से आपको 3 इक्वल टू 4 मिल गया। एंड सिमिलरली हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सिमिलरली अगर कंस्ट्रक्शन इस कॉर्नर से की जाए, दिस बी एक्स किया जाए और क्यू वाई किया जाए, तो आपको ये जो एंगल हम इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ एंगल 5 और दिस इज़ एंगल 6, इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ एंगल 6 एंड दिस इज़ एंगल 5। तो हम 5 और 6 को भी इक्वल बोल सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, अभी तक हमने इक्वेशन मार्क नहीं किए, बट इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2। सो वी आर नाउ गेटिंग कि एंगल 3 + 5 इज़ इक्वल टू एंगल 4 + 6, जिसको आप फिगर आप देखोगे तो एंगल 3 और 5 जो मिलकर बना रहा है वो एंगल ए, और 6 और 4 जो मिलकर बना रहा है वो एंगल पी बना रहा है। अब आपके पास ये दो एंगल्स इक्वल आ गए। अब स्टार्ट करेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल अब लेंगे हम पी क्यू आर, क्योंकि मेनली हमें उसको ही सिमिलर शो करना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि ए बी, आपको ए बी और पी क्यू तो इक्वल गिवन ही था, और ए सी और पी आर भी आपको ये गिवन ही था, दिस यू राइट गिवन। और अभी अभी आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल पी यू कैन राइट अबव, और यू मे मार्क दिस एज 3, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 3। सो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल आपका जो पी क्यू आर है वो सिमिलर हो गया बाय एस ए एस। So this is actually a very interesting question and very good question also, because बहुत कुछ आपको थोड़ा सा पहले से सोचकर डिसाइड करके ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम भी लग सकता है अगर आपने पहले से थोड़ा सा यूटिलाइज़ नहीं किया कि हाँ इसको हम कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए कि AD and PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। इट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सो पहले वो ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि दिस इज़ योर ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज़ ABC, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं दिस इज़ PQR, इसका मीडियन ले लेते हैं दिस इज़ AD, और इसका मीडियन हम ले लेते हैं दिस इज़ PM। तो आपको इसमें AD PM R मीडियंस, ये आपको मीडियंस गिवन है। उसके बाद ये जो ट्राइंगल दोनों दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल इसमें ABC ट्राइंगल और PQR दोनों आपको सिमिलर भी गिवन है। सो वी राइट दिस गिवन आप लिखिए कि AD एंड PM R मीडियंस, ये तो आपके मीडियंस हो गए, और ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये सारी चीज़ें तो आपको गिवन है। इसके बाद हम लिखेंगे टू शो में देखिए आपको शो करना है कि AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू
AD अपॉन PM। तो अब यहाँ पे सोचना आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो साइड्स आ रही हैं, ये साइड्स जो हैं आपकी ट्रायंगल ABC में नहीं आ रही हैं और ट्रायंगल PQR में नहीं आ रही हैं। ये जो साइड्स आ रही हैं वो आपकी एक तो ये ट्रायंगल में आ रही हैं और दूसरा वो आपकी इस ट्रायंगल में आ रही है। अगर मैं कहीं ये शो कर पाऊँ कि ABD और PQM सिमिलर हैं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि फिर मैं सिमिलर करके इनको रेशो को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यही शो करेंगे कि ट्रायंगल ABD और जो ट्रायंगल PQM है वो आपके सिमिलर हैं। तो कैसे सिमिलर करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो एंगल B इक्वल टू आप लिख सकते हो एंगल Q। तो ये आपको इम्प्लाई होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ABC से और PQR से। तो B इक्वल टू Q हो गया। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि AB अपॉन PQ, और अगर हम लिखना चाहें तो BC अपॉन QR भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको साइड्स अगर आपके ये अगर एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनेट होंगी। सो इस वाले में आप क्या कर सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप AB अपॉन PQ लिख सकते हैं और BC के हाफ को आप BD लिख सकते हैं और QR के हाफ को आप QM लिख सकते हैं। तो जैसे हम अब ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, अब हम अगर ट्रायंगल ये वाले ले लेते हैं जिसमें ट्रायंगल ABD ले लें और ट्रायंगल हम ले लें PQM ले लें, तो आपके पास ये ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया कि AB PQ इक्वल टू है BD अपॉन QM। दिस इज, यू कैन राइट दिस अबव। और एंगल B इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल Q, यू कैन राइट दिस अबव, बिकॉज आपने ऊपर ये भी इनको शो करके दिखाया है। तो ट्रायंगल जो ABD हैं सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। अगर ये सिमिलर हो गया तो उसके बाद आप CPST को यूज़ कर सकते हैं कि AB ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन PQ ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी, यू कैन टेक नाउ AD ऑफ दिस ट्रायंगल एंड PM ऑफ दिस ट्रायंगल CPST, and now you can write this as you have proved. तो we have proved this result. ओके, आपको देख लीजिए कि आपको कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है देन यू कैन लेट मी नो, यू कैन राइट समथिंग इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।